Jai Gurudev students, very good morning to all of you. Today I will start identify various peripheral devices. Okay, this is session 1, computer peripheral devices and their use. Computer peripherals are devices used to input information and instructions into a computer for storage or processing and to output the processed data. Okay. What is the use of peripheral devices? It is used to input any information, right? Do you know in our previous class I had explained that how a computer works. First you will give input, then it will process and you will receive the output. So computer peripheral devices will help to input the information and instructions into a computer for storage or processing and to output the processed data. Means every device for output, for input, those all are known as peripheral devices. In addition, devices that enable to operate in between are often called as peripheral devices, right? Peripherals are commonly divided into 3 kinds. How many kinds, students? It is of 3 kinds: input device, output device and a storage device. Understand? How many, students? It is of 3 types. 3 kinds are there of peripheral devices. Learn this: input, output and storage device. So here we will explain. I'll explain one by one and you all will understand it carefully. First is input device. A keyboard. First is keyboard. You all know, students, you all have seen keyboard, that is used for input purpose. The computer keyboard is used to enter text information into the computer. When you type the contents of a report, the keyboard can also be used to give commands directly to the computer, right? To perform certain actions. Keyboard of 2 sizes. Underline or do write this term. There are how many sizes of keyboards are there? 2 sizes. First is 84 keys. In first one 84 keys and second is 101 or 102 keys. Underline these 2 terms. But now 104 keys. How many? 104 keys or 108 keys. Keyboard is also available for Windows and Internet. The keyboard keys are divided into 5 groups. How many groups? This is very important. 5 groups, students. Keyboard keys are divided into 5 groups. Here one by one I will explain. First is typing keys. Typing keys you all have seen. जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं simply. These keys includes letters. Letters A to Z and digital keys 0 to 9. It means total number of numbers 10 and A to Z. 10. Why 10? Because it starts from 0 to 9. Numeric keypad. This keypad is present just on right of the keyboard. It consists of a set of 17 keys. Numeric keyboard, how many, students? Numeric keys, 17 keys, and is used to enter numeric data or cursor movement. Next is function keys. There are 12 function keys which are present on the top of the keyboard. आपने देखा होगा students, बिल्कुल starting में, बिल्कुल top पे क्या होता है? 12 keys present होती हैं. Each function keys has unique meaning and it's used for some specific purpose. Control function keys आपने देखा students. It starts from F1 to up to F12. It will start from F1 up to F12. Total 12 function keys. एंड हर एक फंक्शन की का अपना डिफरेंट रोल होता है. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि F1 यूजुअली इट इज फॉर हेल्प, राइट? जरूरी नहीं है कि F5 की किसी भी एप्लीकेशन के लिए सेम फंक्शन परफॉर्म करे, राइट? मीन्स कि इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस ऑल्सो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी फंक्शन की का वहां पे क्या रोल होगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज, these keys provide cursor and screen control. It includes 4 directional arrows. Have you seen, students? Up, down, left and right. ये क्या है? 4 directional keys. आपने देखा होगा कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं. Control keys also include home key, end, insert, delete, page up, page down, control. In short, you used to say CTRL, right?
अल्टरनेट शॉर्टकट में आप क्या बोलते हैं, ऑल्ट, स्केप, ESC कीज। ठीक है, ये सारी कीज का क्या होता है रोल, कंट्रोल कीज होती है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से या इंडिविजुअल पर्टिकुलर की से आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेशल पर्पस कीज, कुछ कीज क्या होती है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। जस्ट लाइक देयर आर सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज होता है स्टूडेंट्स की, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि स्क्रीन पे आपने अपना प्रोग्रामिंग किया, ठीक है, अब उस स्क्रीन का आपको प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, तो हाउ यू विल टेक, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट स्क्रीन की। सिंपली आप प्रिंट स्क्रीन की एक बार प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद नोट पैड पे, वर्ड पे या कहीं भी राइटर पैड पे आप क्या करोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। तो जो भी आपने स्क्रीन सेव किया है वो या तो कहीं सेव हो जाएगा या तो वो पर्टिकुलर उसमें आप पेस्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? Now see this figure of a keyboard. See students, here each and everything is mentioned. Are you able to see? Okay. Now these 12 function keys are here. Just above, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में देख रहे हो ये नॉर्मल कीबोर्ड है, F1 से F12 तक आपकी फंक्शन कीज अवेलेबल है। These are alphabet keys. अल्फाबेट कीज A to Z। कैप्स लॉक की का यूज क्या होता है कि जब भी आप इसको प्रेस करते हो, ये टॉगल की भी कहलाती है। टॉगल की का यूज क्या होता है, या इसका मतलब आप समझ लो कि टॉगल मीन्स कि दोनों फंक्शन इससे परफॉर्म होता है। आप कैपिटल भी लिखते हो, इसको ऑन कर दोगे तो सारी जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, और अगर आपको कैपिटल में नहीं लिखना है आप इसको ऑफ कर दो, राइट, तो इसलिए इसको टॉगल की भी कहते हैं। शिफ्ट की कंट्रोल की होती है, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको यूज करते हो। देन एंटर की, हियर दिस इज एंटर की, एरो कीज अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक कीपैड, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हो 1 से 0 तक, फ्रॉम 0 to 9 मीन्स 1 2 3 4 अप टू 0। ये यहाँ पे भी न्यूमेरिक कीज अवेलेबल है, बट ये अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड बिल्कुल अलग से दिया होता है। इसका यूज क्या होता है कि जब भी जो पर्सन टाइपिंग करते हैं उनके ईज के लिए, टाइपिंग के लिए कुछ आपको ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, उन ट्रिक्स से आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल कीज का यूज करते हैं, और आपको जब भी कोई नंबर टाइप करना होता है आप इन कीज का यूज करते हो। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? दिस इज अ कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट peripheral devices, your pointing device. What are pointing devices? Pointing devices such as a mouse is connected to the PC via serial port PS/2, mouse port और USB port newer, right? Older one में इस तरह से पोर्ट आते थे, बट न्यू में USB फॉर्मेट में पोर्ट आते हैं, पीछे आप इजीली उसको लगा सकते हो, राइट? सो जस्ट सी व्हाट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI in use today require some kind of devices for positioning the on-screen cursor. Typical pointing devices are mouse, trackball, touchpad, track point, graphic tablets, joystick and touch screen. ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि नेम सम पॉइंटिंग डिवाइस, और इस तरह से भी बन सकता है कि एक्सप्लेन 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस, राइट? या फिर MCQ में आ सकता है कि विच वन ऑफ देम आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ से। ना माउस, व्हाट इज माउस? माउस सबने देखा है, लैब में आपने माउस देखा होगा। स्टूडेंट्स, माउस 2 टाइप्स के आपने देखे होंगे। द माउस इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसको हैंड से यूज करते हो। दैट कंट्रोल्स अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। The mouse pointing device sits on your work surface and it moved from your hand. ठीक है, in holder mouse ball in the bottom of the mouse rolls on the surface as you move the mouse. देखा होगा स्टूडेंट्स, आप जैसे माउस को टर्न करके देखते हो तो पीछे बॉल आपको रेड कलर का उसमें लाइट जलता हुआ दिखता था, एंड एक बॉल रोलर टाइप का लगा होता था, है ना? आप उसको जब मूव कराते थे तो सरफेस को वो उसकी हेल्प से, उस बॉल की हेल्प से, सेंसर्स की हेल्प से उसको फील करता था, और फिर आपको जो भी पॉइंटर था आपका वो आउटपुट डिवाइस पे शो करता था, राइट? बट अभी क्या है कि द न्यूअर ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव एनी रोलिंग बॉल, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लाइट
and the small optical sensor to detect the monitor of the mouse. इसमें क्या लगे होते हैं? स्मॉल सेंसर्स लगे होते हैं जिसमें बॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आपका जो इमेज है या जो भी पॉइंटर है वो आपको शो होता है. ऑप्टिकल माउस अवॉइड्स टू परफॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अ डर्टी माउस बॉल. पहले क्या होता था, आपने देखा होगा लैब में बहुत बार आप कंप्लेन करते थे, मैम दिस माउस इज नॉट वर्किंग. नॉट वर्किंग क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि डर्ट आती है, डस्ट आता है, और डस्ट जैसे ही अगर आपकी बॉल से इंटरेक्ट करता है तो बॉल का जो मोशन होता है प्रॉपर वो रुक जाता था और आपका माउस पॉइंटर आपको ऐसा लगता था कि नहीं वर्क कर रहा है या हैंग कर रहा है, राइट, विच कॉजेज माउस एंड रोल unsmooth if the mouse ball and the internal rollers are not cleaned frequently. Okay, now see these two types of mouse are here. ये आपका क्या है कि टू बटन माउस विद स्क्रोल व्हील. नीचे इसको आप पलट के देखते थे तो इसमें स्क्रोलिंग व्हील्स लगे होते थे. और दिस इज योर वायरलेस माउस विद वन बटन, ओनली सिंगल बटन इज देयर एंड यू आर एबल टू यूज दिस माउस. Next is touchpad. What is touchpad, students? See, next is touchpad. Most laptop computers today have a touchpad. आपने लैपटॉप देखा स्टूडेंट्स, वहां पे माउस की जगह एक स्क्वायर सा टचपैड होता है और वो जस्ट लाइक एक माउस की तरह से आपके लिए वर्क करता है लैपटॉप. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लैपटॉप. ठीक है, ये अपर पोर्शन हो गया. अब यहाँ पे कीज के अलावा यहाँ पे आपको इतना पोर्शन मिलता है, राइट. तो दिस इज योर टच पैड. टच पैड की हेल्प से आपका क्या करते हो कि बिल्कुल माउस की तरह आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो भी पॉइंटिंग डिवाइस आपको शो होता है आप उसको यहाँ पे प्रेस करके कंट्रोल करते हो. अंडरस्टैंड? Okay, next is trackball. Trackball, what is a trackball? Trackball is an input device which is mostly used in notebook or laptop computer instead of a mouse. Mouse की जगह पे आपका ये trackball use होता है. This is a ball which is half instant and moving fingers on the ball. ये आपकी fingers इस ball पे move करती हैं. Then pointer can be moved. यहाँ से आपका pointer control होता है. Trackball is considered better than mouse because it requires little arm movement and less desktop space. ठीक है, बहुत ज्यादा desktop space की requirement नहीं होती और आपको बहुत ज्यादा hands movement की भी requirement इसमें नहीं होती है. Next is track point. See, this is your track point. What is the use of track point? Some sub notebooks, computers such as IBM, ThinkPad, etc., which lack room for even a touchpad. ठीक है, क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस हम नहीं दे सकते हैं, इवन टच पैड भी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं. देन उस केस में क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट अ ट्रैक पॉइंट, अ स्मॉल रबर प्रोजेक्शन. सी स्टूडेंट्स, दिस रेड बटन, दिस इज अ स्मॉल रबर प्रोजेक्शन एम्बेडेड बिटवीन द कीज ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की कीज में बीच में ये कहीं फिट होता है. द ट्रैक पॉइंट एक्ट्स लाइक अ लिटिल जॉयस्टिक दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ ऑन स्क्रीन कर्सर. ठीक है, आप इस पे अपनी फिंगर रख के यहाँ से कर्सर की पोजीशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, राइट. यहाँ पे स्टूडेंट जॉयस्टिक का के बारे में मेंशन हुआ है. तो जॉयस्टिक क्या होती है? जस्ट हैव अ लुक. जॉयस्टिक, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड द पॉइंटर कंटिन्यूअस मूविंग in the direction of joystick is pointing. See students, this is your joystick. और जितने स्टूडेंट्स ने गेम्स खेले होंगे, जो शॉप्स में गेम्स बड़े बड़े स्क्रीन के साथ ही जॉयस्टिक आपको देते हैं, तो जो भी आपके गेम में जो भी एक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है. जॉयस्टिक इज अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स. ठीक है, द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स in a socket. Joystick can be moved in all 4 directions. Very important. ये क्वेश्चन बन सकता है कि joystick कितने directions में मूव करती है? In all 4 directions. Mostly they are used for playing games on the computer. Understand? Next is touch screen. Touch screen आप सबको पता होगा, आप सब स्मार्टफोन यूज कर रहे स्टूडेंट्स. So this is the best example of touch screen. Touch screen is a special computer screen that takes the input by sensing the touch of a human finger. Gloved hand, stylus,
pen or any other pointing device. ठीक है, the user gives instructions to the computer just by touching the screen. Instead of using a pointing device such as a mouse or light pen, you can use your fingers, right? fingertip की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी चीजें हैं, जो भी एप्स हैं, आप उनको इजीली जस्ट इन अ सिंगल क्लिक ओपन कर सकते हो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज ग्राफिक्स टेबलेट. A graphics tablet consists of an electronic writing area and a special pen that works with it. ग्राफिक टेबलेट में क्या होता है, एक पेन मिलती है आपको और एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया मिलता है. वहां पे आप क्या कर सकते हो, उस पेन की हेल्प से लिख सकते हो. ग्राफिक टेबलेट्स अलाउज आर्टिस्ट टू क्रिएट ग्राफिकल इमेजेस विद मोशंस एंड एक्शंस सिमिलर टू यूजिंग मोर ट्रेडिशनल ड्राइंग टूल्स. ठीक है, यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ग्राफिक टेबलेट का. इस पेन की हेल्प से आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो और वो प्रिंट ले सकते हो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज लाइट पेन. नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइट पेन. लाइट पेन का क्या यूज होता है, सी हियर. अ लाइट पेन इज जस्ट लाइक अ पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस. आपने स्टूडेंट्स स्मार्ट क्लासेस में देखा होगा कि बोर्ड पे टीचर्स लाइट पेन का यूज करते हैं. तो लाइट पेन क्या करता है, उसका रोल क्या होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट पेन. वन टाइप इज यूज टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. द अदर टाइप लाइट पेन इज यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बार कोड्स. यूजुअली आपने कौन सा देखा होगा, जो जिससे कि हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन होती है. इसको चार्ज कर सकते हैं आप. ये आपका पेन का शेप है, इसको चार्ज करते हो और इसकी हेल्प से आप ऑन स्क्रीन राइटिंग कर सकते हो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर सबको पता है स्टूडेंट्स कि स्कैनर वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी आपने फोटो रखी, उसकी फोटोकॉपी आपको मिल जाती है. तो स्कैनर का एक्ट बिल्कुल वैसा है. इट इज अ डिवाइस दैट कंप्यूटराइज इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफी, प्रिंट, posters, magazine, pages and similar sources of for computer editing and displaying. Okay. Now स्कैनर सबने देखा होगा और समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि कोई भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप उसकी एक कॉपी जनरेट करना चाहते हो तो स्कैनर में आप उसको स्कैन करोगे और फिर आप उससे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन से भी आप फैमिलियर होंगे. अ माइक्रोफोन कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड. ठीक है, और इससे क्या होगा, जो भी साउंड आप रिकॉर्ड करते हो उसकी वो बिल्कुल क्लियर होगा और कोई भी इधर उधर की साउंड इसमें नहीं आएगी. राइट? द साउंड इज डिजिटाइज्ड. डिजिटाइज्ड होता है दैट टर्न इनटू नंबर्स दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एनालॉग साउंड वेव्स एंड stored in the computer to later process and playback. This approach will eliminate the need for keying in data and would facilitate untrained users to use the computer very easily. ठीक है? Next is MICR. ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? These all are the example of peripheral devices. Okay. Next is MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. Write down the full form. Very important. What is the full form of MICR? It stands for Magnetic Ink Character Recognition. Have you ever noticed in a bank check or demand draft? आपने देखा होगा अगर, तो वहां पे MICR printed होता है. The bank check contains a number at a bottom. यहाँ पे see students, this is the check. This is the example of a check. ये नंबर्स आपने देखा होगा, ये मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर्स है, मैग्नेट से लिखे हुए होते हैं. अगेन यू विल नोटिस दैट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल स्टाइल. दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स कि इसका स्टाइल और आप में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उनका फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल चेंज है. सो कैरेक्टर्स इन मैग्नेटिक इंक कैन बी रीड बाय अ डिवाइस एंड द मशीन चेंजेस दीज कैरेक्टर्स इनटू कोड्स so that a computer can verify the characters for its duplication. ठीक है, डुप्लीकेशन ना होने पाए इसलिए क्या करता है, वो रीड कर लेता है. क्योंकि इसकी कॉपी भी कोई लगा सकता है, तो इट मीन्स एक ओरिजिनल वन ही ये मशीन रीड करती है और उसी पर्सन का चेक कैश होगा जिसमें ये ओरिजिनल नंबर्स प्रिंट होंगे. This type of processing technique with a magnetic ink is known as magnetic ink character recognition. Okay. Next is MIDI devices. MIDI, what is the full form of this MIDI?
Do write or learn. Musical instrument digital interface. What is the full form, students? Musical instrument digital interface is a system designed to transmit information between electronic musical instruments. A MIDI musical keyboard can be attached to a computer and allow a performer to play music that is captured by the computer system as a sequence of notes with the associated timing instead of recording digitized sound waves. ठीक है, ये क्या करता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हो किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ पेरिफेरल डिवाइस. नेक्स्ट इज OCR. OCR stands for optical character recognition. See, okay. Yes, OCR stands for optical character recognition. It is an input device which was developed to read printed documents into computer readable form. It is a machine that reads from a piece of paper. Optical character recognition एक पेपर से कोई भी कोडिंग को रीड करने के लिए यूज होती है. टुडे दिस डिवाइस यूजेस लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस टू स्कैन बारकोड्स, टाइप ऑफ typed or handwriting or handwritten characters to the computer. These characters may be either typewritten or handwritten or computer written. Understand? For example, this is the format of optical character format. The OCR device includes the reading of zip codes by the US Postal Services. US Postal Services reading of passage tickets and freight bills by airlines. It is right to students. And the processing of social security forms and motor vehicles registration by governments. Next is OMR. ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. स्टूडेंट्स यूजुअली आपको सिर्फ इन डिवाइसेस के नेम लर्न करने एंड इनके फुल फॉर्म लर्न करने. ओके, OMR stands for optical mark recognition. It is also an input device. It reads different marks, codes, and then convert them into computer readable format. The OMR device uses high intensity to read the marks or symbols. Basically, this device is used in scholarship, aptitude test or सिमिलर एग्जामिनेशंस. ओके, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें OMR शीट आपको फिल करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको पेन या पेंसिल की हेल्प से ओवल्स को फिल करने होते हैं एंड दैट शीट विल बी रेड बाय दीज OMR मशीन्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज बारकोड. व्हाट इज अ बारकोड? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यूजुअली हर एक ब्रांडेड आइटम्स पे बारकोड मेंशन होता है. लेट मी सी, यस, लेट मी शो यू द एग्जांपल. Just see here. This is the barcode. Anyone from you are able to read this barcode? Tell me. The answer is no, because you are not a machine. You are not able to read these barcodes. Few students will say कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है, सारी लाइंस तो कुछ मोटी हैं कुछ पतली हैं, बिल्कुल सेम लग रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं. बट स्टूडेंट्स, व्हेन योर बारकोड रीडर विल रीड दिस, तो डेफिनेटली आपको इस बुक से रिलेटेड हर एक चीज कि इसकी कॉस्ट कितनी है, क्या पब्लिशर्स कौन है, एनीथिंग, राइट. तो जो भी इस बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या है इस बारकोड में मेंशन. सी, अ बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर इज अ स्क्रीन ऑफ black strip or various thickness on a white background. It is an electronic device that can read and output printed barcodes on a computer. Barcodes are used particularly by the retail trade for labeling goods and by supermarket for labeling shelves and in stock control to keep track of large quantity of items. स्टूडेंट्स, आप मॉल्स में गए होंगे, आपने देखा होगा कि जब भी आप बिलिंग कराते हैं, बिलिंग काउंटर पे उनके हाथ में जो डिवाइस होती है दैट इज बारकोड रीडर, और हर एक आपके गुड्स पे जो भी चीजें आप परचेज करते हो उनमें बारकोड्स बने होते हैं और उसको रीड करने के लिए वो उस डिवाइस का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमराज आर वेरी मच लाइक द मच फैमिलियर.
डिजिटल कैमरा और नॉर्मल कैमरा में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? सिंपल, कि डिजिटल कैमरे में जो भी इमेजेस आप कैप्चर करते हो वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में होती हैं। मींस डायरेक्टली आप उसके कार्ड को कंप्यूटर में रीड करा के सिंपली तुरंत आप इमेजेस को देख सकते हो और वहां से प्रिंट आउट ले सकते हो। बट अर्लियर जो आपका रोल वाला कैमरा होता था उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। अ वेब कैम और वेब कैमरा इज लूजली नेक्स्ट इज वेब कैमरा। A webcam or web camera is loosely used term for any camera that generates image that can be accessed by and displayed on the World Wide Web through a server. They are video capturing devices connected to computers or computer networks, often using USB or if they connected to networks Ethernet or Wi-Fi, and gathers a series of images for remote displaying elsewhere. Webcam technology is widely used by all sort of people for all sort of reasons. Okay, webcams are being used for security purpose and also for video conferencing. Okay students, is it clear? This is the sample or image of your web camera. See this.